So the second characteristics of democracy is free and fair electoral competition. In simple words, elections held should be free. It means people should not be forced to vote anyone, and fair means it should be conducted without any fraud. In this, we will look about two case studies of China and Mexico. First, we will start with the case study of China. In China, regular elections were held in every 5 years. जैसे इंडिया में हर 5 साल में elections conduct किए जाते हैं, likewise even in China elections were held in every 5 years. Now students, remember this, it is an important question. It can be asked in exam कि चाइना में कितने टाइम में elections conduct किए जाते थे. And with these elections, Parliament of the country was selected, which was called National People Congress, and this had the power to appoint the president of the country, and it approximately had 3,000 members, and these members were selected by the people of China. But still, it was not a democracy because the candidates had to first take the permission from the Chinese Communist Party to contest in the election. So the people of China had very limited choice with themselves. So इसमें क्या था कि हर 5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते थे और वो जो पार्टी फॉर्म होती थी उसको बोला जाता था नेशनल पीपल कांग्रेस और उसमें कितने मेंबर्स होते थे? अराउंड 3,000 मेंबर्स. पर अगर किसी को भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, इफ दे हैव टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, दे हैड टू फर्स्ट टेक द परमिशन फ्रॉम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. अगर वो उसको परमिट करते हैं, वो उसको अप्रूव करते हैं, तभी वो कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शंस में. तो इनडायरेक्टली अभी भी कैंडिडेट्स कौन सिलेक्ट कर रहा था? चाइनीज कम्युनिटी पार्टी कर रही थी. तो इस वजह से लोगों के पास वोट करने का राइट तो था, पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की चॉइस थी वो बहुत लिमिटेड थी. Now, if we look at the case study of Mexico, as we discussed that in China, elections were held every 5 years, but in Mexico, elections were held every 6 years. This country never had any monarchy, dictatorship or military rule. But everything changed since 2000. Every election was won by the same party that was called PRI. It means Institutional Revolutionary Party. There were also other parties who participated in the elections, but PRI used tactics and unfair means and frauds to win the elections. As they were in power, they forced the government officers and teachers to ask the parents to vote for their party. And they would sometimes move the entire polling booth to trouble the other candidates. And they used to spend a lot of money on the election campaigns and their candidates. So अगर हम मैक्सिको की केस स्टडी को ध्यान से देखें, सो इन मैक्सिको द इलेक्शंस वर हेल्ड इन एवरी 6 years. हर 6 साल में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं. इनिशियली मैक्सिको में ना कभी मोनार्की थी, ना डिक्टेटरशिप थी और ना कभी मिलिट्री रूल था. बट आफ्टर द ईयर 2000 हर एक साल एवरी ईयर द सेम पार्टी दैट इज PRI वही इलेक्शंस जीता करती थी. सो इट वाज बिलीव्ड कि PRI जो है वो टैक्टिक और फ्रॉड यूज करती है इलेक्शंस जीतने के लिए, और जो दूसरी पार्टी है वो चाह के भी इवन इफ दे आर केपेबल दे वर नॉट एबल टू विन द इलेक्शंस. अब ये जो PRI थी जो बार बार इलेक्शन जीत रही थी, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू फोर्स द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. अब वो पावर्स में आ चुके थे, सो अगेन एंड अगेन दे वुड बी कॉलिंग द मीटिंग्स एंड दे वुड बी फोर्सिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू वोट फॉर देम. एज वेल एज वो क्या करते थे, जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उनको बोलते थे कि आप पेरेंट्स को बोलो कि वो हमारे लिए वोट करे, और ऐसे ही वो बहुत सारा खर्चा करते थे कैंपेन्स के ऊपर. सो ये सारे
अनएथिकल वेज यूज करके वो हर साल अपने आप को इलेक्शंस में जिता देते. सो इफ वी लुक एट द केस स्टडी ऑफ बोथ चाइना एंड मैक्सिको केयरफुली, तो उन दोनों में क्या सिमिलर है कि to show to the entire world they are a democratic country, but actual में in practice they were not a democratic country. They both didn't had any choice. They were left with the minimum choice with the representative. तो 2014 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल करता था इंडिया पे, बट आफ्टर 2014 एंड 2014 बीजेपी केम इनटू पावर. तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार बीजेपी ही इलेक्शंस जीतेगी. इफ दे वोंट बी वर्किंग इन फेवर ऑफ द पीपल और पीपल विल नॉट बी सैटिस्फाइड देयर वर्क, तो मे बी दे वुड बी चूजिंग सम अदर पार्टी, बट दैट डज नॉट मीन कि हर बार हर इलेक्शन में सिर्फ बीजेपी ही रूल करेगी. Now we'll be looking at the third characteristics of democracy, that is one person, one vote and one value. अब इसका मतलब क्या है? एक इंसान एक ही वोट कर सकता है, चाहे वो कितना भी रिच हो, पुअर हो, मेल हो या फीमेल हो, उसको एक ही वोट करने का राइट है और वो एक वोट की वैल्यू भी एक ही होगी. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वन वोट, वन पर्सन एंड वन वैल्यू. अब ऐसे कौन से राइट्स, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स थे जिसमें इक्वल राइट्स डिनाई किया गया, इक्वल राइट्स नहीं दिए गए? इन 2015 सऊदी अरेबिया विमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. 2015 तक सऊदी अरेबिया में जो विमेन थी वो वोट नहीं कर सकती थी. Estonia had such rules that the people belonging to Russia minority had difficulty in voting. एस्टोनिया में क्या सिचुएशन थी कि वो इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे कि जो वहाँ के रशियन माइनॉरिटी है, जो रशिया के लोग वहाँ पे नंबर में कम है, उनको वोट करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी. इन फीजी the value of vote of indigenous Fiji was greater as compared to the Indian Fiji. जो वहाँ के लोकल फीजी पीपल थे उनके वोट की ज़्यादा वैल्यू होती थी as compared to the votes of the Indian Fiji. So at last it was decided that one man and one vote. There would be no discrimination.